morning student. Welcome back to YouTube channel of Gyanmanji Modern English School. Today we are going to start chapter number 5 of Science, Food and Nutrition. Yes student, in previous session you have done hard work of this chapter and I have to explain different types of food. Yes, bodybuilding food and energy giving food, protective food and important water and fiber in our body. Yes student, so before moving forward we will recall previous topic. Okay, so all living things such as animals, plants and insects and human beings, all living things need food. Food give us energy. Food give us energy to grow and stay healthy. Food help us to grow. Food help us to fight off diseases. Yes student, different types of food we get from plants and animals. आपको पता है कि हमको भोजन कहाँ से मिलता है? हमको फूड एनिमल्स और प्लांट से मिलता है. ओके, वी गेट मिल्क, एग्स, वाटर, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. यस स्टूडेंट. नेक्स्ट एग, वी गेट एग फ्रॉम डक एंड कहाँ से होता है? गीज. एंड नेक्स्ट वी गेट मिल्क. We get milk from cows, buffalo and goats. Okay, we get rice, wheat, vegetables and fruits from plants. Yes student, each kind of food contains some substance that our body needs. सभी प्रकार के फूड के कंटेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? Nutrients, the substance present in our food which are needed by our body to grow and to stay healthy. Yes student, nutrients ऐसे सब्सटेंस जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? ग्रो करते हैं और हेल्दी रखते हैं. ओके, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट आवर फूड दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrate, proteins, vitamins and minerals and food also contains roughage and water. Okay, next, nutrients help us to get well after illness. Okay, nutrients help to make us strong and healthy. न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. यस, पल्सेस, फिश, बीन्स, मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट such as butter and cheese are source of proteins. Yes student. Next, they build up your body and help you grow. तुम्हारी बॉडी को क्या करते हैं? बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Sprouted peas and beans are very nutritious. Yes, sprouted peas that means मटर और beans, ये क्या हो? ये दोनों ही हमारे ग्रेन पल्सेस बहुत ही अधिक न्यूट्रिशियस होते हैं. इनके अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है. दीज फूड आइटम कंटेन्स अस प्रोटीन्स. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स. ओके, बढ़ते हुए बच्चों जिसकी उम्र बढ़ती है 10 to 15 ईयर्स के होते हैं बच्चे, जब वो नीड बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है. किसके कंपेयरिंग में? एडल्ट के कंपेयरिंग में. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल राइट हियर इम्पोर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स.
First, nutrients. Define of nutrients. Nutrients, the substance present in our food which are needed by our body to grow and to stay healthy. Okay, nutrients. Define of nutrients, student. The substances present in our food which are needed by our body to grow and to stay healthy. Okay, student. Next, second. नेक्स्ट सेकंड हेडिंग अपना बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. Different types of food. First, energy giving food. First क्या है? Energy giving food. Rice, potatoes, butter, cheese and sugar. And sugar are energy giving foods. Energy giving foods. ओके. नेक्स्ट, दे गिव अस एनर्जी. ये सभी क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं. ओके. राइस, पोटैटो, वाटर, चीज एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड. दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. नेक्स्ट, सेकंड, body building foods. Proteins are called body building foods. Okay, proteins are called body building foods.
peas, beans, pulses or grains, and meat, fish, milk, eggs, milk, milk product, okay, are this source of protein. This sources these sources of protein. Okay. Proteins are called bodybuilding food. Yes, friend. Some food items such as peas, beans, meat, fish, eggs, milk, and milk products such as butter and cheese. Okay, are rich sources of proteins. Okay. Next. Not done, student. Have you written, student? Next. Next, vitamins and minerals. Are called protective food. Protective food. Okay. Fruits, green leafy vegetable and milk are example of vitamins and minerals. Okay. So next, vitamins help us fight disease. Help us fight diseases
Okay. Next, minerals make our bones and muscles teeth strong. Okay. Fruit, fruits, green leafy vegetable, fruit like strawberry, banana, pineapple, है ना, mango, so on. Yes, and green leafy vegetable. Green leafy vegetables and milk. Milk. Milk contains vitamin and minerals. And milk contains such as butter, cheese, yes, and paneer. Okay. So fruit such as mango, pineapple, strawberry, orange, है ना, sweet lime, and green leafy vegetables such as spinach, cabbage, and milk contains such as butter, paneer, and so on. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals found. Okay, fruits and green leafy vegetable and milk contains found vitamins and minerals. Okay, next. First, importance of water and fiber in our body. And fiber. Importance of water and fiber. Our next topic. First, water keeps our body healthy and maintain body temperature. Yes. Water keeps our body healthy. Yes, it maintains body temperature.
Okay. Water help us to digest food. Digest food. Okay. So we should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. Okay student, importance of water. First, water keeps our body healthy. Okay, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. नेक्स्ट, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमारे हेल्प करता है. ओके, सो वी शुड ड्रिंक at least 6 or 8 glass water every day. Okay student, note down. Fruits and vegetables are rich in fiber. Okay, fruits and vegetables are rich in fibers. Fibers and water. Fiber and water. And water help our body to get rid of waste material. Okay students, first, vitamins and minerals are called protective food. Okay, विटामिन्स और मिनरल्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ओके, विटामिन्स हेल्प अस फाइट डिजीज. हमें क्या करता है? लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है. मिनरल्स हेल्प आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. मिनरल्स जो है हमारे टीथ को क्या और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके, फ्रूट्स, green leafy vegetables and milk contains vitamin and minerals. विटामिन और मिनरल्स का जो कंटेंट्स है वो क्या है? फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर. ओके, फर्स्ट, वाटर कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. ओके, वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके भी रखता है. नेक्स्ट, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर. सबसे अधिक कहाँ फाउंड होते हैं फाइबर? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, तो सबसे अधिक मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल डेली लेना चाहिए. नेक्स्ट, फाइबर एंड वाटर हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में क्या करते हैं? फाइबर और वाटर हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट these topics. Sorry, this sentence.
our next topic is balanced diet. What is balanced diet, student? When our food contains all the essential nutrients in the correct amount, it is called balanced diet. Okay? Yes? When our food contains all the essential means that means necessary nutrients in correct amount, it is called balanced diet. Okay? जब हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. ओके. नेक्स्ट, मिल्क कंटेंट प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंप्लीटेड फूड. सब मिल्क में सभी कंटेंट फाउंड होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क इज कंप्लीटेड फूड. मिल्क इज अ कंप्लीटेड फूड. ओके. बेबीज लाइफ ऑन मिल्क. बेबी की जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मिल्क के ऊपर डिपेंड रहता है. ओके. इट हेल्प देम ग्रो एंड गिव देम एनर्जी. जो हमारा मिल्क होता है वो उसको एनर्जी भी देता है और उसको ग्रो होने में मदद करता है. किसको, बेबी को. ओल्ड एंड सिक पीपल ऑल्सो नीड मिल्क. यस, ओल्ड एंड सिक पीपल, बीमार पीपल को एंड ओल्ड पीपल को बहुत अधिक मिल्क की आवश्यकता पड़ती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड. कुकिंग फूड हम डायरेक्ट ऐसा तो खाते नहीं है, फूड को कुक करके ही खाते हैं. सब फूड होते हैं जो हम की रॉ फूड में खा लेते हैं. तो वी ईट सम फूड कुक्ड. हम क्या करते हैं, कुछ फूड को हम कुक्ड करते हैं एंड सम रॉ कुक्ड फूड. ऑल फूड्स कैन बी ईटन रॉ. कच्चा ही खाते हैं. ओके. सम वेजिटेबल्स सच है कुकुम्बर, टमाटो, कैरेट, रेडिश कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. कुक्ड करके भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं. ओके. कुकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ हीटिंग kill germs that may be present in vegetable and also makes food such as rice soft and easy to digest. Yes. अधिक कुक करने से फूड में, ज्यादा कुक कर लेते हैं अभी फूड को, तो उसके जो जर्म्स हमारे जो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे क्या करने के लिए, किल जर्म्स दैट विल प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स. जो ओके जर्म्स को किल करने के लिए कर देते हैं. यस. नेक्स्ट, फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट. और जैसे कि हम डायरेक्ट राइस को तो ऐसा खा ही नहीं सकते, खा सकते विदाउट कुक नहीं. तो पहले जब हम उसको कुक्ड करते हैं तो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और हम इजीली उसको खा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, वी ऐड शुगर, salt, oil and spices while cooking to make food tasty. यदि ये सभी आइटम्स जो हमारे जितने कंटेंट्स हैं वो हमारी फूड को क्या बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं. ओके. बट कुकिंग डिस्ट्रॉय सम ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन वेजिटेबल. किंतु कुकिंग जब हम अधिक कुक्ड कर लेते हैं फूड को तो उसके कुछ जो विटामिन प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल में वो कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. Therefore, it is good to have fresh fruit or vegetable salad every day. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सैलेड लेनी चाहिए. So, fruit and vegetable are properly washed first. सबसे पहले वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. नेवर ईट फ्रूट दैट हैव बीन कट एंड लेफ्ट इन द ओपन, दे अट्रैक्ट फ्लाइज. ओके. तो कभी भी हमें खुले हुए जो ओपन किया हुआ फूड है उसको और लॉन्ग टाइम से हमने कटिंग करके रखा है फ्रूट को, उसको क्या नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लाइज अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे जो हमको दिखाई नहीं देते वो ऐसे माइक्रोब जर्म्स जो है क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ
Remaining topic we will understand in next video. Okay? Homework. Note down. Today's homework is read the lesson, lesson 5, food and nutrition, टू टाइम. कितने टाइम करना है? 2 टाइम. सेकंड, राइट important points. जीरो नंबर 2, वन टाइम. ओके. अभी जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाए हुए हैं आपको टॉपिक के कुछ, उसको आपको अपनी जीरो नंबर बुक में नोट डाउन करना है एंड लेसन को 5 लेसन को 2 टाइम क्या करना है? रीड करना है. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.